Do you think we know what we are doing? No. And even if we do, we are gambling. We are trading. Trading is gambling. जो बेसिक आपकी सैलरी आमदनी है जो इंडिया में है, that has not increased. This is a well known fact. इसीलिए affordability is a problem. तो लोग ये सोच रहे हैं कि भाई छोड़ो इसको, घर छोड़ो. Some people are even letting go of starting a family and saying that खर्च कर देते हैं. Again because of social media. Again because of comparing. Patience is going down. Do you think somewhere we are all putting ourselves in this debt trap? That all of these temptations, this easy way to spend your money and just swipe and you're done. We are all putting ourselves in this debt trap without knowing. मैं आपसे एक रिक्वेस्ट करना चाहता हूँ मुबीना कि आप प्लीज स्वैप कर लीजिए चेयर. I am interviewing you and I have to ensure that I'm asking you the right questions. Hello and welcome to Simple Hair. I'm not Vivek Law. इतना तो आप लोगों ने सोच लिया होगा by now. I'm Mubina Kapasi, but today I've decided to sit on Vivek Law's chair, the man who has interviewed hundreds of investors, money experts, wealth creators, and understand that as a millennial, what are those things that I have to face differently, right from expenses to investing. Vivek, should I say thank you for joining me today? मैं आपसे एक रिक्वेस्ट करना चाहता हूँ मुबीना कि आप प्लीज स्वैप कर लीजिए चेयर. See, मैं वही कंफर्टेबल हूँ. और आपको ये रिक्वेस्ट कितनी बार आपके एक्सपर्ट्स ने बोला होगा? कई लोगों ने बोला, लेकिन मेरे ख्याल से वो ज्यादा कंफर्टेबल वहीं, क्योंकि वो एक्सपर्ट्स थे, मैं एक्सपर्ट हूँ नहीं. और ये भी कहना चाहूंगा कि मैंने आपको टीवी पे बहुत देखा और आपने अपनी एंटरप्रेन्योर जर्नी शुरू की और आज आपके स्टूडियो में मैं बैठा हूँ और बहुत बहुत आपको बधाई हो और बहुत अच्छा काम आप कर रही हैं. तो इसलिए वो बात की खुशी है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि मैं इस चेयर पे कहूँ. Vivek, you actually took the words out of my mouth because as somebody who joined the industry in 2015, आपके बारे में मैंने सिर्फ सुना है. But ऐसा मीडिया इंडस्ट्री में है that there's this sense of kindredness. You know, you've heard so much about the other person, but you've never physically met them. You've seen their videos. आपने कॉलीग से सुना है, सीनियर्स के बारे में सुना है that there's Vivek Law, he's the editor of so many news channels, so many papers. But I think it's great that I finally get to meet you. And honestly, you should not be nervous. I should be nervous because I am interviewing you and I have to ensure that I'm asking you the right questions and the intelligent questions. मुझे इस बात की खुशी है मुबीना कि कम से कम आपने 2015 कहा कि आपने करियर शुरू किया, क्योंकि आजकल जब लोगों को कहता हूं मैं तो कहते हैं तब हम स्कूल में थे, ये हम पैदा ही नहीं हुए थे. बहुत मुझे खुशी है कि कम से कम आपने कहीं ना कहीं कुछ काम मेरा देखा. Yeah, and there is a little bit of a commonality between us because I get that feeling too sometimes, honestly, and I'm just in 2015, the 2015 batch जो कहते हैं. But Vivek, see, you started in the 90s. I started in 2010s roughly. But ये 20 साल में जो हमने देखा है, it's unbelievable, and that gap is getting shorter because now when I talk to people who are, let's say, 10 years younger than me, the difference is getting starker in terms of the way they are approaching money, in terms of वो कैसे invest करते हैं. आपने तो for sure देखा हुआ है. But I want to first talk about महंगाई. आजकल the minute you step out of your door, कम से कम 1,000 रुपए का खर्चा हो ही जाता है. मुझे मूवी भी देखने जाना है. I get into a cab, or even, I'm not even talking about an Uber, a regular cab. I go buy popcorn, I go buy the movie ticket. It's 1,000 rupees gone minimum. What is fueling this massive surge? I mean, is it taxes? Is it in general this bout of inflation that we are seeing? देखिए मुबीना, ऐसा है, पहला आपका जो सवाल था कि क्या बदला है, कैसे चीजें बदल गई. Between the time when you started and between the time I started, भारत में बहुत बदलाव आया. इस देश में 1995 में तो इंटरनेट आया. और 96, 97 तक मोबाइल टेलीफोनी आई, लेकिन तब 100 रुपए पर मिनट का रेट था, तो बहुत कुछ लोग थे जो अफोर्ड कर सकते थे. मैंने खुद शायद मोबाइल फोन 2001 में लिया. तो अब देखते हैं बाजार कैसे बदला.
लेट 90s में नेशनल स्टॉक एक्सचेंज की क्रिएशन हुई, जी, NSDL की क्रिएशन हुई अराउंड अर्ली 2000s। तो और उसके बाद मोर रिसेंटली पूरा जो डिजिटल स्टैक जिसको कहते हैं कि इंडिया स्टैक डिजिटल, ये सब जो हुआ इससे डेमोक्रेटाइज हो गया पूरा के इन्वेस्टर्स। नहीं तो पहले वी वर जस्ट अ क्लब करेक्ट, ऑफ अ फ्यू ब्रोकर्स एंड अ फ्यू रिच पीपल, द वुल्व्स ऑफ द लाल स्ट्रीट। बिल्कुल यही था। जी, क्योंकि अगर आप किसी छोटे शहर से थे, कस्बे से थे, कहाँ था आपके पास पोटेंशियल Correct. या जानकारी कुछ करने की। जी, सेबी इटसेल्फ, हालांकि एक्ट पास हुआ 92 में, लेकिन इट टुक ऑलमोस्ट अबाउट 97 99 जब तक जो शुरू के रेगुलेशंस हैं वो आए हाँ, देश में। तो ये 10 15 20 साल में बहुत कुछ बदला। एंड लास्ट 30 years आई फील which coincides roughly with the private mutual fund industry, except UTI as and that was a different story, but बहुत काम हुआ इन्वेस्ट एजुकेशन में। इसमें मैं मानता हूं कि इंडस्ट्री खुद ने, और सबसे ज्यादा मैं क्रेडिट दूंगा, और इसलिए नहीं दे रहा क्योंकि मैं वहां का हिस्सा हूं, लेकिन मीडिया ने। दीजिए, मैं भी मीडिया से ही है। मैं समझता हूँ कहीं ना कहीं, क्योंकि आज मीडिया बदल गया है और आज हम इन्फ्लुएंसर, सोशल मीडिया और इस करके हम सब डिस करते हैं इसको कि ये क्या है, ये है, लेकिन पिछले 30 साल में चाहे वो न्यूज चैनल्स हों, न्यूज़पेपर्स हों, और आप और मेरे जैसे जर्नलिस्ट ने अपने अपने जितना हमसे हो सका हमने प्लेटफॉर्म दिया। करेक्ट, म्यूचुअल फंड के एक्सपर्ट्स को आके बात करने का, फाइनेंशियल प्लानर्स को आके बात कर। अब आती है बात इन्फ्लेशन की। मेरे ख्याल से यही तो मेन रीजन है मोबिला कि लोगों को इन्वेस्ट करना है। देखिए, लोग भाग जाते हैं फाइनेंशियल प्लानिंग से सोच के कि आप ये मुझे कहना चाह रहे हैं कि मैं स्पेंड ना करूं। लेकिन फाइनेंशियल प्लानिंग में कभी मैंने किसी को ये नहीं सुना कहते कि आप स्पेंड मत करिए। सिर्फ ये इंश्योर करिए कि आप साइड बाय साइड इन्वेस्ट भी कर। फाइनेंशियल प्लानिंग का मतलब बिल्कुल ये नहीं है कि आप स्पेंड ना करें। आखिर हम पैसे कमाते क्यों हैं? एग्जैक्टली। तो पॉइंट ये है कि आप इन्फ्लेशन को कैसे बीट करेंगे। क्योंकि इफ यू हैव 100 रुपीज मोबिना इन योर वॉलेट, 100 रुपए का नोट, आजकल तो उसकी कोई वैल्यू है नहीं, 500 की नोट जी, उस 100 का ले लीजिए टू मेक इट सिंपलर। कुछ नहीं किया आपने, 1 साल बाद वही 100 रुपए में जाके आपने कुछ खरीदने की कोशिश की तो वो 95 का। अभी हाल में छोटे बच्चों का 8 years to 12 years किड्स का मैं एक सेशन ले रहा था। तो उनके स्कूल में मैंने एक बच्चे को कहा, ये लो आप 100 रुपए और जाके कैफे है वहां पे, उससे जितनी कुकीज मिलती हैं ले आइए। हाँ। उसको 2 मिली और 20 बच्चे थे। तो किसी की माँ वहां बैठी थी। मैंने उनसे पूछा, मैम आपके टाइम में 100 रुपए में कितनी कुकीज आ जाती है? तो उन्होंने कहा कि कम से कम 15-20 तो आ जाती। ऑफ कोर्स। किसी के ग्रैंड पेरेंट्स बैठे थे उस क्लास में। मैंने उनसे पूछा, उन्होंने कहा 100 रुपए तो आप बहुत बड़ी बात कर रहे हैं, हमारे टाइम में 5 रुपए में हमको 100 कुकीज मिल जाए। तो ये इन्फ्लेशन है, ये दिखता नहीं है, लेकिन जी अगर आप काम कर रहे हैं, मेहनत कर रहे हैं और आपको इन्फ्लेशन को बीट करना है so that you can spend your money wherever you want, तो इन्वेस्टमेंट इज द ओनली ऑप्शन। क्योंकि लोग कहते हैं उसमें ये है वो, और तरीके हैं किस तरह से आप सही तरह से कर सकते हैं इन्वेस्ट, रिस्क कम कर सकते हैं, जो भी है। You know that one point that you mentioned कि आप जो मेहनत कर रहे हैं and you are earning money, it is to enjoy it, it is to spend it. I think somewhere this is what I have felt. We come from Indian families and थोड़े बहुत conservative families भी, and I'm sure many of our viewers also like that. That हमारे जो parents थे और grandparents थे, उन्होंने कभी भी
उनका हमेशा कंजर्वेटिव अप्रोच था टुवर्ड्स मनी, लाइक सेव करो, यू नो, पिगी बैंक में डालो और जस्ट पुट इट इन अ प्लेन वैनिला सेविंग्स अकाउंट. दैट इज ऑल्सो अ बेस्ट केस फॉर आवर ग्रैंड पेरेंट्स. वो लोग तो यू नो पलंग के नीचे वगैरह वो सब करते थे. नाउ द जनरेशन आई थिंक ट्रूली बिलीव्स इन दैट कि ठीक है, वी आर you know earning, we want to spend, and the good thing is they are also investing. So both are happening now. It's just about balancing the two, you know, and ensuring that you're not spending more than you're earning, and you're ensuring that you're investing. And the problem is that आज के ज़माने में इतने सारे attractions है to spend, you know, if not movie tickets and all, there are experiences. And the Swiggy, Zepto, Zomato has, मतलब मैं क्या बताऊँ यार, मेरा यूपीआई ट्रांजैक्शन का जो लिस्ट है इन द बैंक स्टेटमेंट, माय सीए कर्सेस मी because the bank statement has become so long. And again, India's tax, right? It made it so easy. Do you think somewhere we are all putting ourselves in this debt trap, that all of these temptations, this easy way to spend your money and just swipe and you're done, we are all putting ourselves in this debt trap without knowing? बिल्कुल, मैं ये मानता हूँ मुबीना, और ये भी सब एक्सपर्ट से ही सुना है मैंने. पिछले एक आध साल में मैंने काफी मेंटल हेल्थ एक्सपर्ट्स के इंटरव्यू किए. Okay. और लोगों ने कहा कि आप ये क्यों कर रहे हैं, इसका फाइनेंस से क्या कनेक्शन है. Yeah. और मैंने कहा कि फाइनेंस भी यहाँ है, इन्वेस्टमेंट भी यहाँ. तो दो तीन चीजें उसमें सामने है. पहली बात, अगर आप, ये ट्रू है जिंदगी का भी और इन्वेस्टमेंट का भी, अगर आप कोई भी डिसीजन इसलिए ले रहे हैं क्योंकि किसी और ने ऐसा सिमिलर डिसीजन लिया है और कंपेयर कर रहे हैं अपने आप को किसी से, किसी भी चीज में, तो ये आपकी मेंटल सेहत, आपकी फाइनेंशियल सेहत के लिए अच्छी बात है. और सोशल मीडिया ने इस चीज को बहुत एग्जैजरेट कर दिया, क्योंकि जिस इंसान को आप जानते भी नहीं, पहले हम 10-20 लोग कहीं मिलते थे, फैमिली होती थी, गेट टुगेदर होता था, आपने देख लिया, ओ आपकी कुर्ती बड़ी अच्छी है, ये मेरे को भी ऐसे चाहिए, ऐसे, ये बात खत्म हो जाती थी. ट्रू. लेकिन आज आप जिसको जानते भी नहीं है, जिसको कभी मिले भी नहीं है, वो कौन से कपड़े पहन रहे हैं, वो कौन से फर्नीचर खरीद रहे हैं, आप वो सब देखते हैं जी. और कई चीजें अच्छी लगती हैं, सबको अच्छी लगती हैं, लेकिन वांट और नीड की जो बात है, और ऐसा नहीं कि आपको वांट बिल्कुल ही नहीं करना चाहिए, वो भी ठीक है. एक्सपीरियंसेस, आपने कहा एक्सपीरियंसेस ही तो जिंदगी बनाते हैं जी, तो बिल्कुल एक्सपीरियंसेस लीजिए. लेकिन अगर आप किसी और को देखकर, इमिटेट कर अपना जीवन जी रहे हैं, तो फिर आप मुसीबत में पड़ेंगे. अब डेट ट्रैप की जहां तक बात है, देखिए लोग मोबाइल फोन खरीद रहे हैं 90 हजार के, 1 लाख के, कोई हर्ज नहीं है. आपने अगर सेव किया है, आपने इन्वेस्ट किया, आपने उसके लिए प्लान किया है, गोल है आपका, बेशक खरीदिए, कोई प्रॉब्लम नहीं. लेकिन किसी और के पास है और आप अफोर्ड नहीं कर सकते, उसके लिए लोन ले रहे हैं, 18-20% का लोन ले रहे हैं, जब आपको पता है कि वो फोन जब आप शॉप से बाहर निकलेंगे उसकी वैल्यू 40 हजार भी नहीं होगी जी. वो गलत जी. तो जैसे कहते थे कि अपनी चादर उतनी ही पसारो जितनी आप हैंडल कर सकते हैं. तो ये जो हमारे पूर्वज कहे गए ये चीजें, ये आज भी रेलेवेंट हैं. और आपने जैसे कहा, द ब्यूटी इज कि माइंडसेट चेंज हुआ है. हमारे टाइम में अगर कोई आपको कह देता था कि यार तुम ना बड़े मनी माइंडेड इंसान हो, तो ऐसा था कि जैसे कोई थप्पड़ मार जी. या हमारे पेरेंट्स अगर बैंक जाते थे, गाड़ी बंद करते थे, बोलते बेटा ये बड़ों की जगह आप गाड़ी में बैठी. ये बदलाव बहुत आया, और ये आया है डिजिटल से. ट्रू. और अक्रॉस इनकम क्लासेस आया. तो ये अच्छी बात है. एक्सेस है आज, ईज है ऑफ ट्रांजैक्टिंग, एंड साथ ही उसके जो प्रॉब्लम है वो तो है डेट ट्रैप की. अभी हाल ही में आरबीआई को इंस्ट्रक्शंस देने पड़े जी, इन सब बैंक्स को, एनबीएफसीज को, कि थोड़ा थामिए, आप क्या मतलब करे जा रहे हैं ईएमआई. लोग
तो बेशक आप खरीदिए, लेकिन वहां तक खरीदिए जो आप अफोर्ड कर सकते But Vivek, have you heard of YOLO? हो। यू ओनली लिव वंस। तो हमारे टाइम में क्या 2 बार जीते थे? हम भी तो एक ही बार जीते थे। सब इंसान एक बार जीते हैं, हमारे पूर्वज भी एक ही बार जिए। तो ये पॉइंट बिल्कुल नहीं है, जैसे मैंने पहले भी कहा मुबीना, कि आप एक्सपीरियंसेस ना लें, बेशक लें, लेकिन जो फाइनेंशियल प्लानर्स कहते हैं, बहुत सिंपल चीज कहते हैं। वो कहते हैं कि पहले आप अपने जो भी गोल्स हैं, एक्सपीरियंसेस हैं, उन्हें लिख लीजिए। फर्स्ट ऑफ ऑल, नीड्स। रोटी कपड़ा मकान इज नो लॉन्गर ए नीड। आज हर इंसान को अपने काम में काम करने के लिए फोन की जरूरत है, लैपटॉप की जरूरत है, डेटा की जरूरत है। ये सब अब नीड्स हो गई हैं। ये वांट्स, कमरा मकान, राइट, है ना। अब आप उसको किस तरह से अफोर्डेबल कर सकते हैं, वो आपकी इनकम पे। इसके बाद बात आती है मेरे एक्सपीरियंस गोल्स की, कि भाई मेरे को नॉर्दर्न लाइट्स देखनी है 2 साल बाद, 3 साल बाद, उसके लिए मुझे इतना बचाना, कोई प्रॉब्लम। मेरे को घर लेना है, नहीं लेना है, घर लेना है। मेरे को शादी करनी है, नहीं करनी है, वो आपका गोल है। आई वॉन्ट टू हैव अ चाइल्ड, ये आपका गोल है। लेकिन जो भी आपके गोल हैं, और एक चीज मत भूलिए कि only common goal is we are all going to retire at some point of time. Either we'll be forced to retire or we'll retire by choice. आजकल तो लोग वही फायर की बात आ गई कि भाई जल्दी मुझे करना है। आई एम श्योर हमारी आपकी में भी, मेरी में भी ये था, आई वांट टू रिटायर एट 40। तो कोई नई बात नहीं। जी जी, एब्सोल्युटली। जिंदगी ना मिलेगी दोबारा, योलो जिसको कहते हैं, वही तो है। Yeah. वो आज थोड़ी बनी है मूवी। That movie made me wonder, ये लोग सब कह तो रहे हैं, but who is funding all this, yeah? Realistically, more and more people who are my age are literally questioning. ये ठीक है, it's an ideal situation. What our parents used to think that, अच्छा 25 में शादी, 30 में बच्चा, 35 पे घर, या जो भी ऑर्डर में है। To have a child is expensive. To own a house is expensive. और जो incomes है, जो basic salary, let's not talk about investing etc. but जो basic आपकी salary आमदनी है, जो इंडिया में है, that has not increased. This is a well-known fact. इसीलिए affordability is a problem. तो लोग ये सोच रहे हैं कि भाई छोड़ो इसको, घर छोड़ो. Some people are even letting go of starting a family and saying that खर्च कर देते हैं. Let's do those Northern Light experiences. Let's buy that fancy phone. Let's, जो भी है revenue expenditure सब कर लेते हैं, because घर तो खरीदने से रहा. I mean, you and I both know that आज EMI भरते भरते 30 साल चले जाते हैं. So whatever you're earning, you're basically just paying away in EMI. At least 30 years for sure. By the time you can actually own the house. So ये क्यों करना है? So that mentality has come in. पहली बात तो, do you think wealth creation has become difficult? Because owning a house is also a part of wealth creation, right? You're adding to your wealth. So firstly, do you think it's become difficult now for this generation? Secondly, do you think because of that, people are also saying, forget it. मैं invest करता हूँ, ठीक है, जो भी है वो मिलता है, that I will spend on travel. I don't want to bother on investing in these long-term assets. Investing, wealth creation मेरे ख्याल से तो बहुत और सिंपल हुई है। Of course, that for sure. Yeah. और जिस जगह में भारत है, अभी आपने पीछे देखिए, आप कोई भी म्यूचुअल फंड स्कीम ले लीजिए 25-30 साल पुरानी, कईयों ने अक्रॉस फंड हाउसेस 20% कंपाउंडेड, 21% कंपाउंडेड, लेकिन 20 पीपल, 30 पीपल, 40 पीपल, ये नंबर्स हैं जो लोग रहे पूरे। Only 20 people. 20, 30, 40, 50 who stayed the duration and got this 21%. Out of lakhs who invest. Who started? तो मुश्किल क्यों है मुबीना? मुश्किल इसलिए है कि मेरे ख्याल से again because of social media, again because of comparing, patience is going down. Yeah. Patience is a function of your mind. रियल एस्टेट में लोगों ने पैसे बनाए क्योंकि पेशेंट थे। हमारी
मदर्स, ग्रैंड मदर्स, ग्रेट ग्रैंड मदर्स ने पैसे बचाए, सेव किए, क्योंकि वो पेशेंट थी। जनरेशन टू जनरेशन गहने जेवर जो बना के रखती थी वो पास ऑन होते थे। जी इसे पेशेंस कहते। आजकल कोई वेट नहीं करना चाह रहा, जी, इंस्टेंट ग्रेटिफिकेशन, इंस्टेंट पैसे बनाने। ये दूसरी बात है कि आज मुझे पिज्जा खाने का मन कर रहा है, मैं अभी स्विगी पे कर दूंगा। शायद हमारे टाइम में था कि भाई चलो सैटरडे जाएंगे वहां उस जगह जाके खा जी। के आएंगे, या वो ठीक है। लेकिन इन्वेस्टमेंट में भी अगर आप जस्ट बिकॉज यू हैव सो मच ऑफ इंफॉर्मेशन अवेलेबल ऑन योर फोन कॉन्स्टेंटली, तो आप उसके बेसिस पे अगर पेशेंट नहीं रहेंगे तो वेल्थ कैसे बनाएंगे? वेल्थ तो बहुत बनने वाली है इस देश में। अगले 20 साल में मेरा मानना है कि बहुत वेल्थ बनेगी, लेकिन वो बनाएंगे कौन? जो पेशेंट है। यू नो, एक पॉइंट जो आपने कहा, दैट्स वेरी ट्रू, दैट डेरिवेटिव्स है, क्रिप्टो है, ऑल ऑफ दैट वी आर ऑल डैबलिंग इन। आई नो सो मेनी ऑफ माय फ्रेंड्स यार, जो हमेशा मुझे पोर्टफोलियो दिखाते हैं, पीएनएल्स दिखाते हैं वगैरह वगैरह। डू यू थिंक वी नो व्हाट वी आर डूइंग? No. And even if we do, we are gambling. We are trading. Trading is gambling. And a very renowned... Would you say that even for professional traders, जो ब्लूमबर्ग No. टर्मिनल के साथ? नहीं वो अलग। अच्छा, वो किसी ने उस पे बहुत रिसर्च की, कोर्सेज किए, पढ़ाई की, टेक्नोलॉजी बनाई, मॉडल्स बनाए, वो अलग बात है। अच्छा, वो उनका प्रोफेशन है, उस पे उन्होंने बहुत मेहनत की है, बहुत सीखा है, फिर जाके किया। पर कोई यंग इंसान है जिसने ना तो वो पढ़ाई की ना कुछ की, किसी ने 2-3 टिप्स सोशल मीडिया पे देख लिए, एक्सेस आपके पास है, करेक्ट, आप शुरू हो गए, तो वो गलत है मेरे ख्याल से। क्योंकि इस तरह की ट्रेडिंग और कसीनो ले लीजिए, गैम्बलिंग ले लीजिए, गेमिंग का आपने ले, इसमें क्या डिफरेंस है? तो गेम ऑफ चांस खेल रहे हैं। गेम ऑफ चांस, या। And any such activity is defined as a behavioral addiction by professional doctors. क्योंकि आप जाते हैं कसीनो में, क्या होता है? आप जाते हैं, शुरू में थोड़ा जीतते हैं, आपको लगता है मैं और जीतूंगा, फिर आप जाते हैं, हारते हैं, आपकी ईगो हर्ट होती है, आपको लगता है मुझे इसे वापस रिकवर करना है। तो उस रिकवरी को करते 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 देखते देखते आप उसमें इतना धंस जाते हैं कि वेल्थ बनाना तो दूर की बात है। You've lost. आप किसी रेस कोर्स में चले जाइए, बाहर लोग आएंगे, गाड़ियां तक पहले बेच देते थे। मैंने एक कहानी सुनी, कितने पैसे हरा दिए, बाहर आए, ये मेरी कार ले लो मुफ्त में, ये 2000 में, 10,000 में। तो हर गैम्बलिंग ऐसे ही होती है, और कहते हैं गैम्बलिंग में द हाउस ऑलवेज Wins, right. Do you think sometimes it's a very hard and a cruel thing to say this, but sometimes let them go through this. एक निकाल दो सिस्टम से, एक बार का। बिल्कुल, कोई हर्ज नहीं है। अभी आप देखिए, आपने भी बहुत इनके इंटरव्यूज किए हैं, सारे म्यूचुअल फंड हेड्स के और ब्रोकिंग आउटफिट्स के, और हम सब उन सबसे यही सुनने को मिलता है, इंडियन इन्वेस्टर मैच्योर हो गया। अभी आपने देखा ट्रंप के टैरिफ टेंट्रम में 10-15% बाजार सितंबर से गिरा, और एसआईपी स्टॉपेज रेशियो पेपर में ही पढ़ रहा था, क्या हो गई, 140%। एसआईपी लोगों ने बंद कर दी। आपको भी 50 कॉल आए होंगे, मुझे आए, इन लोगों को तो हजारों कॉल आई होंगी। प्लानर से किसी से बात करिए, परेशान कर दिया। क्या 10-15% की गिरावट में? इट्स लाइक सेइंग आपके पास 100 रुपए, मैंने आपसे 10 रुपए आज ले लिए और आज फिर बाजार ऊपर आ गया। तो क्यों? क्योंकि ये फर्स्ट टाइम इन्वेस्टर्स थे जी। बल्क ऑफ देम पोस्ट कोविड वर फर्स्ट टाइम इन्वेस्टर्स, द यंग पीपल। तो इनको ये पहला झटका लगा है। तो पहला झटका जोर से ही लगता है। जिन लोगों ने 40% जो कोविड के टाइम में ऑलरेडी इन्वेस्टेड थे, देखा 30-40% गिर गई। 2008 में 30-40% गिर गई।
पर फिर रिकवर भी की। रिकवर हो गया। तो आई गेस यू आर एब्सोल्युटली राइट मुबीना, ये सब चीजें हम लेसन्स लर्न करके ही, देखिए हम जितना भी शेयर करें एंड में इंसान, जब तक हम तो ये कोशिश करते हैं आपको लात ना लगे, लेकिन इंसान की फितरत होती है जब तक खुद ना चीज लगे ही नहीं सी। गुड लोन बैड लोन जैसे हम कहते हैं, तो व्हाट इज द ऑब्जेक्टिव ऑफ द लोन? आप घर खरीद रहे हैं, और इन्वेस्टिंग इन एसेट, हाँ एन एसेट बेसिकली। अगर आप लोन लेंगे टू बाय अ फोन, देन इट्स समथिंग दैट्स लेकिन जैसे मैंने कहा कि हाँ हो सकता है कि आपके पास एक नीड है एक फोन की, हाँ लेकिन अभी आजकल फोन इज ऑल्सो एन इन्वेस्टमेंट ऐसे देखा जाए। इन्वेस्टमेंट तो नहीं, नीड है, नीड है। इट्स बिकम लाइक फूड। यस। लेकिन वहां भी 10,000 का भी स्मार्टफोन और 1,00,000 का भी स्मार्टफोन, तो और उसमें आपका स्मार्टफोन नॉर्मल आप उसे छोड़ दें ठीक ठाक, गिराए ना ज्यादा, तो 5-6 साल चल जाता है। लेकिन किसी से पूछ लीजिए आपके किसने अपने फोन को 5 साल रखा। आजकल हर दूसरे साल आपको नया फोन, द फोन हैज बिकम अ सिक्स्थ फिंगर, तो इट्स इम्पॉसिबल कि आप फोन को ना गिरा। हर 2 साल आपको नया फोन लेना है, हर साल एक नया मॉडल आया मुझे वो लेना है, तो फिर तो आप डेट में गिरेंगे ही ना। आपका फोन कितना साल चला है? 8 साल। और मेरा कैन आई सी योर फोन? आई वांट टू सी। और वो मैंने 18,000 का लिया था। अभी तो कैन समवन प्लीज गेट विवेक लॉस फोन? आई रियली नीड टू सी दिस 18,000 फोन व्हिच हैज टर्बल आईडिया। मैंने 30 साल में, और कई मेरे कॉलीग्स हैं जो आपको भी जानते हैं, आप उनसे वेरीफाई भी कर लेना, कि मैंने 30 साल में केवल 4 फोन यूज किए हैं मोबाइल। नो वे। तो मैं ये नहीं कह रहा कि आप भी सब लोग 4 यूज करें 30 साल में, लेकिन थोड़ा सोचिए। बेशक 1,00,000 का फोन लीजिए, कोई प्रॉब्लम नहीं, लेकिन पहले जो आपके गोल है उसके लिए इन्वेस्ट करिए, चाहे जो भी गोल हो। I have a kid, 2 years old, and I'm around 34, 35, and I sometimes wonder that 40 की बात तो छोड़ दो यार, वो मैंने ड्रीम सपना वो 20s में ही छोड़ दिया था कि वो नहीं होने वाला है। बट आई समटाइम्स वंडर कि कैसे होगा, हाउ विल आई, you know what, now I don't know आजकल क्या ट्रेंड, by the time my daughter is 17, 18 and I'm hoping to let her fly solo by then, but how is it possible to do it in the limited income? I mean, इस शो पे राधिका गुप्ता, जिनको आप भी जानती हैं, इंटरव्यू कर चुकी हैं, उन्होंने कहा she has I think a 3-year-old son, and she said, Mubina, and her husband is also a finance professional and she's also a finance, and obviously इन दोनों ने बैठ के, हस्बैंड वाइफ ने जब मैथमेटिक्स की, तो उनको ये रियलाइज हुआ कि 3 साल का जो उनका बेटा है, 18 की उम्र में जब ओवरसीज जाएगा पढ़ने, दे विल नीड 9 crore rupees फॉर 1 child। तो ये सब नंबर्स कोई डराने वाली जरूरत, ये मैं आपको रियल लाइफ एग्जाम्पल एक ऐसे कपल का बता, वो तो चलो अफोर्ड कर लेंगे, दोनों बहुत सक्सेसफुल फाइनेंशियल पीपल हैं, लेकिन नंबर्स आर स्केरी। इसके लिए इन्वेस्ट करना इज इम्पेरेटिव। but investment can make me reach that 9. Yes, it can, of course it can make it. I mean, whether you reach 8 crore 7, अब वो तभी तो मैं कह रहा हूं कि वो इन्वेस्टमेंट आपको पहले तय करना है कि अगर मेरी बच्ची के लिए मेरे को इतने पैसे की जरूरत है 15 साल बाद, 16 साल बाद, तो उसके लिए मुझे क्या इन्वेस्ट करना है। नंबर आएगा आपके पास कि आपको मंथली इतना इन्वेस्ट करना है, आप उसे डाल दीजिए। अब उसके बाद आपके जो बचे, मैं कह रहा हूं सपोजिंग दैट्स द ओनली गोल, आप जाके चाहे 1,00,000 का फोन ले, 2,00,000 का ले, उससे क्या लेना देना। ओके, सब कुछ करिए, तो रिवर्स करिए ऑर्डर को। दैट इज द मेन थिंग। वही मेन थिंग है। हमारी आदत क्या है, पैसे आते हैं, खर्चो पहले, फिर जो बच गया उसे इन्वेस्ट कर दो। जी, इट हैज ऑलवेज बीन लाइक दैट। ऑलवेज बी, यस, ट्रू, एंड इट इज स्टिल कंटिन्यूइंग टू बी लाइक दैट। इट हैज टू चेंज।
कि सबसे पहले आप तय करें कि मेरे को रिटायरमेंट के लिए मंथली इतना डालना है, इसके लिए इतना डालना है, इसके लिए इतना डालना है, और जो मेरी बेसिक नीड्स हैं वो ये है, खाना पीना, घर, रेंट, चाहे रेंट हो, ये मतलब जो भी, ये मेरी बेसिक आउटगोज है। इसके बाद मुझे इन्वेस्ट करना है, उसके बाद जो बचा आप बेशक स्पेंड करिए, जहां मन करे आपका स्पेंड करिए। अब लोग ऐसा क्यों नहीं करते? उन्हें लगता है कुछ बचेगा ही नहीं। कोई बात नहीं, फिर भी जी रहे हैं ना, आपकी नीड्स पूरी हैं, आपके रिस्पॉन्सिबिलिटीज पूरे हैं, और ये एक स्टैगर्ड मैनर में आप कर सकते हैं। जरूरी नहीं है कि आपको आज ही जाके बहुत बड़ी रकम डालगी, कल आपकी सैलरी बढ़ेगी, आप उसे बढ़ाइए। कई लोग ऐसे हैं मुबीना, 15 साल पहले 1000 रुपए की SIP, आज भी 1000 चाहिए SIP, इनकम चाहे ट्रिपल हो गई, ये कहाँ की समझदारी? एक्सपेंसेस जरूर ट्रिपल हो गए, बिल्कुल हो या लाइफस्टाइल एक्सपेंसेस तो होने ही है ना। ऑफ कोर्स, आपका जब औहदा बढ़ता है, सैलरी बढ़ती है, इनकम बढ़ती है, आपकी लाइफस्टाइल भी बढ़ जाती है। आप एक गाड़ी ले लेते हैं, फिर आप एक दूसरी गाड़ी ले लेते हैं, कपल आज दोनों वर्क करते हैं, दोनों को ट्रांसपोर्ट चाहिए, घर, खासकर कोविड में दोनों को ऑफिस स्पेस चाहिए थी अपने कमरों में जी। ऑन आर द डेज कि एक इंसान काम कर रहा है, बाकी सब उनको सपोर्ट करते हैं। तो लाइफस्टाइल कॉस्ट को अगर आपको मीट करना है तो जैसे जैसे आपकी इनकम बढ़े, यू हैव टू कीप पुटिंग। ये थोड़ी है कि मैंने 1000 कर दी SIP तो मैं सॉर्टेड हूँ। पेशेंस अच्छी है, बट ऐसी पेशेंस नहीं चाहिए कि 15 साल तक वही सेम चल रहा है। Let's talk about retirement. Firstly, I think this whole concept of retirement is something that, I mean, yes, in our mind, traditional sense क्या होता है retirement का, कि ठीक है नौकरी छोड़ दी, एक farewell party मिल गई, and now you are just sitting on your, rocking chair, reading the newspaper, going on morning walks. वही हमारा एक concept है mind में। But मैंने concept के बारे में बहुत सोचा है, and we've often said कि एक वो होता है ना, अरे वो रिटायर्ड अंकल है पड़ोस में, वो सब ये करता रहता है। वी ऑफन सॉर्ट ऑफ थिंक दैट दे हैव नो अदर वर्क, एंड दैट्स व्हाई दे टेंड टू बिकम अ बिट पेनफुल टू देयर सोसाइटी, देयर नेबर्स एंड ऑल। एंड आई रियलाइज दैट व्हेन यू रिटायर, यू हैव टू रिटायर इनटू समथिंग। ऐसे नहीं कि वो 9 से 5 की नौकरी छोड़ दी, अब बस बैठ गए, एंड यू आर डूइंग नथिंग, बिकॉज देन योर आइडल माइंड टेंड्स टू बिकम अ प्रॉब्लम for yourself, most importantly. तो पहले तो ये concept जो है retirement का, something that I think needs to be relooked completely. But how we have to look at retirement is that पहले आपकी income X थी, अभी X minus certain percentage हो गई है. So you're basically living on lower income. So I wouldn't want to call it retirement. So let's talk about that concept. जब few years later, when I will not be actively professionally working, when I have to afford living on lower income, I have to plan for that. अभी समझो देयर आर पीपल हु रियलाइज एट 30 कि अरे हाँ, मेरा तो 30 साल बाद आई मे नॉट बी हैविंग दैट मच इनकम। इज इट टू लेट 30s 40s में? नेवर। मतलब जो इंसान 20 पे शुरू करता है, ऑब्वियसली आप उसके साथ कंपेयर नहीं कर सकती अगर आपने 40 पे किया। बेसिक पॉइंट है मुबीना, आपको एक बहुत अच्छा बड़ा कॉर्पस बनाना है जब तक आप करेक्ट। सोचिए सिंपल सी बात को, सपोजिंग आपने ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम, चाहे 20 पे शुरू किया, 30 पे किया, 40, ऑब्वियसली विद एज योर इनकम हैज रिजन, your ability to put more has been there, but obviously you don't get that much benefit of compounding versus somebody who started 20 years earlier. But even then, supposing आज आपने 5 करोड़ का कॉर्पस बना दिया और वो अच्छी जगह पे इन्वेस्टेड है वो कॉर्पस, and let's presume it's giving you 12%, जो normally planners बोलते हैं। Presume, yeah. You are in effect earning 60 lakh rupees a year on top of your corpus at 12%. So I may be retired. I may be today earning less than what I was when I was, say, actively working. But I'm also making 5 lakh a month. And because of that, I don't need to change my lifestyle. But that can only happen if either you have
invested wisely and built that corpus. And that is what we call passive income. That one is, you may be working somewhere for the reason very rightly that you said, Mubina. कभी हमें वो आइडल माइंड की सिचुएशन पे पहुंचना ही नहीं चाहिए. लेकिन हो सकता है कि कोई 60 साल का इंसान है, उसे कोई उतनी जॉब अपॉर्चुनिटीज ना मिले, तो कम सैलरी मिले. लेकिन अगर आपने ये कॉर्पस अच्छा बना लिया, तो आप फ्री में भी काम कर सकते हैं. जी, क्योंकि यू लाइक डूइंग इट. एग्जैक्टली. क्योंकि दिस इज टेकिंग केयर ऑफ योर इनकम. Your house is not running on this salary. Correct. It is running because you have this corpus. And building that corpus, therefore, is very essential. नहीं तो at 60 या तो आप idle होंगे, जैसे आपने कहा, अंकल जो भी हैं बैठे हैं बिना काम के, बोर हो रहे हैं, लोनली हैं, और या फिर you will take up something which you will not want to take up. Which will have a detrimental effect. You will feel humiliated. You will feel very upset at the fact कि मैं कुछ ऐसा कर रहा हूँ जो मुझे ठीक नहीं लगता, अच्छा नहीं लगता. Frustration आएगी. तो ये कोई तरीका है क्या अपनी ओल्ड एज बिताने का? आप कहीं विदेश जाइए, आप देखेंगे ये जो डेवलप्ड कंट्रीज के लोग हैं, उन्होंने जिंदगी भर अच्छे से इन्वेस्ट किया है. रिटायर होके इतना बड़ा पूल है कि घूमते रहते हैं. एक्चुअली प्रॉब्लम इज उनका सोशल सिक्योरिटी जो है, लाइक इन द स्कैंडिनेवियन कंट्रीज. इट्स यूएस में देख 401 के प्लान जब आया कि जब से आप ज्वाइन करते हैं, वही अब हम एनपीएस के जरिए करना चाहते हैं हमारे देश. जी, कि आप जहां जाइए, हमारे यहाँ भी था ईपीएफ, लेकिन कुछ साल पहले तक तो इक्विटी में इन्वेस्टमेंट अलाउड ही नहीं ईपीएफ को. जी, या यूनियन खड़े होकर बोल देते थे कैसे आप इक्विटी में कर रहे हैं. आज थैंकफुली एनपीएस में आप 100% भी इक्विटी में जा सकते हैं अगर आप चाहें, क्योंकि व्हेन यू आर 20 और एन एम्प्लॉई, यू हैव द एबिलिटी टू टेक रिस्क. तो ये चीजें बदलेंगी, लेकिन आपको जब तक रियलाइज करना है कि 30-40 साल में अगर आपने अच्छा सा कॉर्पस बना लिया, तो आपके अगले 40 साल खुश रहेंगे, फ्री रहेंगे. Vivek, 30 years is a long time, yeah, to be, in finance, talking to so many people, and I'm sure you have a treasure trove of information from these people. So I want some very quick takes from you. SIP or PPF? I know the answer. If you are young, certainly SIP, but if you need to have significant allocation to PPF debt, then surely, given the tax benefit and the interest rate, PPF is also not a bad option. Gold or real estate? I own neither, but both are asset classes. Gold तो impossible. दादी नानी ने तो छोड़ा ही. हमारे लिए थोड़ी छोड़ा. अच्छा. लड़कों के बेटियों. Well, I mean, for me, zero, but I don't own any real estate. I don't own any gold. But for an investor who feels these are good asset classes, in certain proportion, there is no problem. So, my next question might be a bit redundant, but what do you think of buying a house before 35? It's each individual's choice. Each individual's choice, okay. कुछ लोगों को बहुत सुकून मिलता है इस बात से कि मेरा ये घर है, मेरा अपना घर. और कुछ लोग वही सुकून किसी और के घर में खोज लेते हैं रेंट पे. तो ये इंडिविजुअल चॉइस है, इसमें कोई पर्सनल फाइनेंस की कोई साइंस नहीं. अच्छा, वेडिंग बजट्स 5 लाख के लहंगे आते हैं, बट 5 लाख में म्यूचुअल फंड में भी इन्वेस्ट कर सकते हैं. अगर आपने ऑलरेडी अपनी इन्वेस्टमेंट कर ली है, अगर आपके गोल की तरफ आप बढ़ रहे हैं, तो 5 लाख क्या 10 लाख का भी लहंगा लें. हम जब शादी करते हैं तो यही सोच के जाते हैं कि वंस इन अ लाइफ टाइम होगी. सोचो ये चाहते, तो क्या हर्ज है उसमें. इट्स योर स्पेशल डे, यू वांट टू मेक इट स्पेशल. उसकी फोटोज, उसकी एल्बम्स आप सालों साल देखेंगे जी, तो क्या हर्ज है. लेकिन प्रोवाइडेड आप उसके लिए लोन नहीं लेके कर रहे, ये ना देख के करें कि उस मूवी स्टार ने कौन सा पहना. लेकिन अगर आपने अपना
अच्छे से पोर्टफोलियो इन्वेस्टमेंट सब प्लानिंग कर रखी है, तो 5 लाख क्या 10 लाख का लहंगा लीजिए, क्या What a refreshing thought. नहीं तो usually people would say नहीं 5 लाख का लहंगा ये क्या कर दिया. So thank you. आपको क्रिप्टो क्या लगता है? Is it a trend or a trap? I mean, it is at this point, Mubina, an unregulated Yeah. Asset इन्वेस्टमेंट और एसेट, पता नहीं है भी कि नहीं. क्योंकि अंडरलाइंग एसेट उसका क्या है कुछ क्लैरिटी वो नहीं है। Yeah. तो ट्रेंड तो बिल्कुल है, इंटरेस्ट लोगों का इसमें बहुत है, लेकिन क्योंकि ये अनरेगुलेटेड है, कोई गाइडलाइंस नहीं है, कोई स्टैंडर्ड्स नहीं है इंडिया में कम से कम, तो अगर आपको इसकी अच्छी समझ है तो बेशक उसे आप देखिए, लेकिन अगर आप उसको भी ट्रेडिंग की तरह डेरिवेटिव से हटके, क्योंकि सेबी ने नॉर्म्स टाइटन कर दिया, आप क्रिप्टो में भाग रहे, तो प्रॉब्लम वही है, कुएं से खाई में. बिल्कुल। जॉइंट अकाउंट्स का क्या आपके क्या राय है? अगेन पर्सनल चॉइस, पैसे कौन से अकाउंट में है वो रेलेवेंट नहीं है मुबीना। जरूरी ये है कि एज अ कपल क्या आप जो गोल्स हैं, कुछ गोल्स कलेक्टिव होते हैं, बच्चों की पढ़ाई, आपकी रिटायरमेंट, साथ ही रिटायर होना है, हाथ पकड़ के साथ ही वॉक करना, तो ये कलेक्टिव गोल्स हैं, घर खरीद, तो उनकी जो फंडिंग है वो आप दोनों को साथ करनी है। तो कुछ लोग कहते हैं 50-50% होनी चाहिए, ये होनी चाहिए, वो होनी चाहिए, सब क्या नंबर है ये? मतलब 2 लोग हैं, 2 लोगों के कुछ गोल्स कंबाइंड हैं, कुछ लोग गोल्स इंडिविजुअल हैं। तो एज अ कपल आपको ये देखना है कि हम उन गोल्स को फंड कर पा रहे हैं, कैसे कर रहे हैं, क्या। ठीक है, चलो, we've come to the end. Vivek, I want to know, आपने how many hours do you think you've spent speaking with, top honchos of mutual fund industries and financial companies? ऐसी बात These हो साल गई है की नोबिना career कि अब कई लोग ये कहने लग गए हैं कि विवेक, आपके सवाल भी नहीं बदलेंगे, हमारे जवाब भी नहीं बदले। I mean, golden rules of वो तो सेल ही होते हैं इनको, कहीं अब ऐसे कहते हैं कि विवेक क्या नया बताए। तो सिंपल है, मैं यही कोशिश है हमारी कि उनकी थोड़ी लाइफ की जर्नी में झांके, हर चीज को कॉम्प्लिकेट मैथमेटिकली करने की जरूरत नहीं है मूवी। हम लोग आई थिंक बहुत हर चीज को फॉर्मूले में डाल देते हैं, एंड आई डोंट थिंक दैट्स नेसेसरी। मनी इज अ पार्ट ऑफ योर लाइफ, अ वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ योर लाइफ, एंड जिस तरह से जिंदगी को आप सिंपल कर करके जी सकते हैं अच्छे से, उसी तरह अपने फाइनेंसेस को भी सिंपल कर दीजिए। हर चीज में मैथमेटिकल मॉडल्स खोजने की जरूरत नहीं है, वो एक्सपर्ट्स पे छोड़ दीजिए जिनका वो काम है। Okay, you understand all these complex financial jargons, जैसे सब numbers फेंकते हैं, spreadsheets बड़े बड़े बनाते हैं, that's one thing, but simplifying it for the audience is a very, very big challenge. And Vivek, I think you do that very nicely through Simple Hair, and I think मुझे मौका मिला है to speak with someone who has thousands and thousands of hours speaking to experts. So in a way मुझे भी वो तजुर्बा मिल गया है, and that's what we've tried to do as well with this episode. So Vivek, thank you. Thank you for allowing me to sit on your chair. Well, if you enjoyed this conversation, then hit us a like button, write it on the comments. If you'd like me on the hot seat for more, please do write that in, and I will be grilling Vivek on many other topics. Thank you for watching.